So, should we start? See, our topic is effective teaching and blended with the, have a seat please, blended with National Education Policy 3. Let me introduce myself first. My name is Vipin Sharma. If you Google my profile on internet, Vipin Sharma Physics, then you'll get about me. And if you just Google, you'll get my profile. So I think I'll not dwell much upon it now. You can check later. See, effective teaching is one of the main topics here. And before going to effective teaching, there is one prayer of mine which I will be utilizing. Do we have mother teachers here? One or two mother teachers? Please, I request you to come. If there is no mother teacher, so the school is not having mother teachers. Hana. All right, ji. ठीक है जी. So we'll skip that part. So when we talk about the effective teaching concept, we face some issues related to the effective teaching. That is a relationship between the student and the teacher, and a relation between teacher and the parents. Fortunately, we are all teachers as well as parents. So this session can be dual in nature. When we move into the classroom, so nowadays the students are pampered. तो बच्चों को बहुत पैम्परिंग है. पेरेंट्स के मन में ये होता है कि हमने फीस दी है और स्कूल इसका पूरा ख्याल रखेगा, और उस फीस देने से टीचर के पास एक जादू है, वो ऐसा दे देगा कि बच्चे की पूरी नॉलेज आ जाएगी. बट प्रैक्टिकली स्कूल में हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं और ऊपर से ब्रेक्स भी होती हैं और एडिशनल विंटर ब्रेक्स भी हो जाती हैं, तो सिलेबस लैक करता है. इफेक्टिव टीचिंग में स्टेप नंबर 1, सिलेबस स्पीड, ये बहुत खराब करती है हमारी सिस्टम, हमारा सिस्टम, क्योंकि वी आर रिप्लायबल टू कोऑर्डिनेटर, then vice principal, then principal, finally MD, and we are always in the litmus test. ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ 512ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ. ਇਟਸ ਮਾਈ 512th workshop, and I've done in Punjab, Haryana, Himachal, Uttarakhand, Jammu Kashmir. So my largest session was with 800 teachers in DPS Faridkot. Then Mr. Apurva Devgan is principal there. Then I've done workshop in Sardar Prakash Singh Badal School, Malwa International, Gidarbaha. Then 3 days before I was in Pairupa, the school run by President of India's family, Dr. Jail Singh. Anyway, interactions are there. My workshops are interactive. It is not my workshop, it is our workshop. It's a teamwork. Okay? तो वर्कशॉप में क्या होता है कि पीपीटी दिखाई, तारे जमीन पे, ये वो दिखाया, चलते बने, वो मैं करता नहीं हूं. और लैंग्वेज भी जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फर्स्ट करिकुलम है. ये यार वो इंग्लिश का जो किला है ना, वो टूट रहा है.
ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਐਨਈਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ। I was just quoting to sir that I had a chance to address a session with the parents somewhere in district Sangrur, and principal said that you have to allocate in English, and everywhere it was written that 500 rupees is the fine if you don't allocate in English. I said okay. So it was a session with the parents, and I said what an ambience and exuberance and opulence of this august gathering. I'm enthralled to see the doting care and affection by the management and the principal and coordinator and the staff. I'm really enthralled to meet you all. उत्थे बापू जी बैठे सी वो खड़े हो गए, कहते काका आपकी गुस्ताखी में कुछ आख सकता हूं? मैंने कहा यस, आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो आप हिंदी बोल लो। उन्हें सोचा कि मैं बाहरों आया। बाय द वे आप हो कहाँ के? मैं कहा जी गवर्नमेंट स्कूल पगड़ाना, रिहायश पिंड दादू माजरा, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला। तो तुसी पंजाबी हो? पर पंजाबी बोल रहा यार। मैं कहा वो प्रिंसिपल मैम ने कहा भी यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। कहता जी फीस असी दिंदे हां, तुसी पंजाबी च गल करो। सो मेरी नजर दे विच जे असी अपनी मदर टंग च नहीं बोल सकदे तां साडे ते लानत है। तो इस करके आई कैन एलोक्यूट इन इंग्लिश, यू नो, बट इट्स अप टू यू टू सिलेक्ट द लैंग्वेज। बट आई प्रेफर द लैंग्वेज जो भाषा तुसी कहोगे। ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਬੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਬੋਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਤਾਂ I have no problem at all, right? So effective teaching is a really a big scene. Sometimes ना मैंने किसी ने पूछा कि what is the meaning of a teacher? तो मैं वो WhatsApp तो YouTube तो ना नकल नुकल मार के रट्टे रुट्टे मार के चला गया। मैं कहा T for this, E for this, A for this, C for this। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। I am impromptu, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੀਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੀਚਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 11th ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 12th ਕੀਤੀ, उस बाद मैं सर बीटेक की, फिर मैंने नौकरी नहीं मिली। मेरे पापा जी कहते यार फलाने स्कूल च एमडी मेरा दोस्त है, तू उत्थे लग जा। तो मैं कहता जी फिर सोचा भी चलो मैं पढ़ा लेना। कहता 10वीं तक मैं पढ़ाना। मैं की पढ़ाना है? कहता सर मैं 10वीं तक इच्छाधारी टीचर है। ओके कहना मैं इच्छाधारी टीचर है जी, मैं अंग्रेजी भी पढ़ा देना, मैं पंजाबी भी पढ़ा देना है, तो मैं हिंदी भी पढ़ा देना है। वैसे मैं इंजीनियर है एंड दो आई एम वेरी गुड इन मैथ्स साइंस, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स। मैं कहा जी वो क्यों? कहना सर हुण मैनू तो नौकरी मिली है, वो कहंदा सी तुसी हिंदी पढ़ाओ। तो कहंदा जी मैं लग गया, मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। कहना मैं हुण टेक्निकल बंदा, टेक्निकल चीज़ां लभ के ले आया। मैं कहा की हुंदा है? कहना मिला रहे तो नर रहे, अगर जुड़िया होया तो वो मेल है, अलग हुए तो फीमेल है। कहंदा सोने जैसा रंग है, दसो की है? मैं कहा यार ये तो मैनू ही नहीं पता। कहना जी चना छोले, मिला रहे तो नर रहे चना, अलग हुए तो चने की दाल। मैं कहा यार इंजीनियर बंदा अपनी टेक्निकल चीज हिंदी च भी लै आंदा। सो वो कहना सर मैंने नौकरी नहीं मिली। तो मैं कहा चलो कुछ पैसे मिलते हैं, पॉकेट मनी सी। एक तो वो डेफिनेशन है टीचर दी, एक डेफिनेशन है टीचर दी है कि शादी होगी, AM I was teacher in Chandigarh, BM I was teacher in Chandigarh, AM now in Patiala। BM means before marriage, AM is after marriage। तो कहना then I have joined a school, ते उत्थे मैं बच्चों को पढ़ाना पैंदा है। रियल इज वेरी पैथेटिक। एक तो स्कूल वर्कशॉप्स जिहड़ियां बहुत तंग करदी, तीजे चौथे दिन कोई ना कोई वर्कशॉप वाला आ जाता है। असीं कई बार काम करना होंदा, कपड़े धोने होंदे और सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड समटाइम्स वी कैनॉट मेक एन एक्सक्यूज बिकॉज प्राइवेट नौकरी है, तो जे असीं नहीं जावांगे तो सानूं कदे भी जाके कहणगे आपकी यात्रा यहीं पर है।
एक ये भी डेफिनेशन है टीचर की। बट मैनू एक्चुअली लाइक टू डिस्कस विद यू, देखो मैं हुण तुहानू थोड़ा सा कंफर्टेबल किया। दिस इज NEP फर्स्ट लॉजिक, क्या? बॉन्डिंग। First of all, we have to create bonding between the student and the teacher, as I have create bonding between me and you because I am also one of the teachers. Maybe teacher, I taught physics so many years, right? But I'm teacher by choice. I'm not an accidental teacher, but I'm teacher by choice, right? So I would like to discuss with, first of all, honorable. अच्छा, एक ना ego नहीं होनी चाहिए, because long back, 6 years back roughly, I had been asked by this Koradava people, कि sir, can you do workshop? मैं कहा yes, I am an electronic engineer, I can do PNP, NPN transistors, etc. 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 कहता नहीं sir, other than that workshop. मैं कहा कार तो नहीं है। कहता नहीं जी, ये वर्कशॉप डिफरेंट है। मैं कहा मैकेनिकल वर्किंग तो मैनू आंदी नहीं। कहंदे नहीं सर, यू हैव टू एड्रेस टीचर्स। मैं कहा यार, टीचर्स ਨੂੰ एड्रेस करना खाला जी ਦਾ ਬਾੜਾ है, वो तो ऑलरेडी ज्ञानी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ है। फर्क इन्ना है कि आके बोल गए, ऐसी सुन लिया, बट वी ऑल नो दिस। इन पता लगे साडे स्कूल च आके पढ़ाए, ओके। I'll discuss everything practical. I have done 513 workshops, तो मैंने तुसी लोगों ने मांझा है, मेरा कुछ नहीं अपना, सब इधर उधर इकट्ठा करके कंटेंट बना लिया। कोई मेरे को कागज नहीं थानू मिलेगा, ना ही मैं कागज च बोलना है, राइट? So, hope you are feeling comfortable. तो this is the first step of national education policy कि सब तो पहला बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ comfortable ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ comfortable ਕਰਨ ਦੀ। Am I right? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ next point is what, dear teachers, कि क्लास च कोई भी बच्चा ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਨੂੰ। Nobody wants to come to school ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ, ਨਵੇਂ ਬੈਗ, ਨਵੀਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਰੈਸ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 7th मैथमेटिक्स, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਲਟਾਈ ਹੈ। then you immediately go to, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਜੌਬ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ हैं, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੈਲ ਡੀਅਰ ਟੀਚਰਸ, the word is fine, teacher, which I am looking for the perfect definition. The first definition of teacher is that he should have connection, bonding, connection. How many teachers have come in the back gear? साढ़े फिजिक्स एक क्वेश्चन है कि एक बंदा शराब पी के 4 कदम अगे चलता सी, 8 कदम पीछे आंदा सी, 13 मीटर की दूरी ते एक खड्डा सी, तो दसो किन्ने स्टैप लैके खड्डे च गया। तो कई बार की हुंदा भी असीं जाना पैना, आपस च भी तुसीं क्या होना WhatsApp ते उत्ते जाओगे तुसीं, ठंड बहुत है पर जाना पैना, राइट? सी अपन आज कुछ ऐसा कम करिए जिस नाल आपां कुछ कंक्लूजन कढिए कि आपां इसनूं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं थ्योरेटिकल गल कोई नहीं करांगा। मैं कहूंगा टीचर वो होता है जो सुबह जल्दी उठता है, मैं तो उठता नहीं। टीचर वो होता है वो ये, मैं तो सारे कम करदा जी। तो हाउ आई कैन से टीचर इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। ਅਸੀਂ टीचर कोई अवतारी पुरुष थोड़ी है। कई पता की सोचते भी जो टीचर का बर्थ होंदा है लेबर रूम दे विच एक रोशनी आंदी है रोशनदान चों, और डॉक्टर कहंदा कि अवतारी स्त्री अवतारी पुरुष पैदा होया टीचर बनेगा।
ऐसा कुछ नहीं है. We are all human beings and we are also a kind of a student. So first word is coming, teacher is always a student. How's it? Good? You're jealous, I think. If you don't like it, then it's okay. Otherwise, you must applaud it. A teacher is always a student. Sometimes student is better than teacher. ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੌਟ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਹਾਰਮੋਨ, उस हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन. कभी सुने नाम? गल सुनो, मैं एवं ज्ञान नहीं है मेरे को, मैं ज्ञान पहले नहीं आया. एंडोर्फिन मैं भी किसी तो सुनिया होया, जो मैं थोड़ा दस रहे बन रहे हैं. फैले विद्या चानन होए. मैं एक पूछा तो मतलब किया, कहना सर फेल हो जाओ तो स्टूडेंट बदन गए तो विद्या का चानन होएगा. ओ नहीं, फैले विद्या चानन होए मींस जिन्ना एजुकेशन स्प्रेड करेगी, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀਏ. ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਮ ਆਪਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੜਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੱਚੀ? ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. दैट इज एंडोर्फिन. जैसे जिम जाके एक्सरसाइज करके आइए, शीशे च मसल देखिए, दैट इज एंडोर्फिन. जैसे बहुत बढ़िया तैयार होके 2-3 बार शीशा देखिए, दैट इज एंडोर्फिन. जैसे उन्हें कोई एप्रिशिएट करे, वी गेट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंडोर्फिन. इज इट क्लियर? सुनो, एंडोर्फिन बच्चों च भरना है. एंडोर्फिन सानू स्टूडेंट्स दे, मेरी लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई थिंक इफ आई एम स्पीकिंग इन पंजाबी तो ये तो नहीं कहोगे सर अनपढ़ है. हाँ जी. टीचर अकॉर्डिंग टू यू, आई रिक्वेस्ट, मैनू डर लगता कहते हुए, बट आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मैम टू ज्वाइन मी एंड प्लीज यू फील कंफर्टेबल जी. आ जाइए प्लीज. यस मैम, कंटिन्यू, स्टार्ट मैम. So just You can hold it in the hand also. No, let it be in your hand itself. Okay, it's in the hand itself. God bless you. Thank you, sir. Good morning, everyone. My name is Ritu Dhiman, and I am an art teacher here. Yes, ma'am, I'm listening. Everyone should think that I am this. Yes, ma'am. Continue. I have done masters in fine arts and B.Ed in fine arts and Hindi, and I have 15 years experience in teaching line. So, ma'am, like you have such a long experience and there are so many things to learn from you. And how do you rate the word teacher in your way? आप अपने हिसाब से टीचर्स को किस तरह से डिफाइन करते हो other than the traditional B.Ed definition? Okay, मतलब आपकी अपनी सोच है. ये ऑर्गेनिक सेशन है. ऑर्गेनिक जानते हो? आपने ऑर्गेनिक खाद सुनी होगी, ऑर्गेनिक. ये हमारी ऑर्गेनिक वर्कशॉप है. कोई पिपीटी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, ना ही कोई वो वीडियो दिखाऊंगा. इट्स आवर सेशन, राइट? यस मैम. ओके, अबाउट टीचर, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब टीचर वो है जो मतलब कि बच्चों से अच्छा एक कनेक्शन बना सके. वाह, ठीक है, ग्रेट. कनेक्शन बना सके, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा वो बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अगर हम बोली जाएंगे तो बच्चे कनेक्ट नहीं होते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स एंड देन आफ्टर दैट उनके हमें लिसनिंग पावर, मतलब उनका सुनना भी चाहिए हमें, और उनके बारे में जानना भी चाहिए, और जो अबाउट सब्जेक्ट है वो उसके बारे में भी हमें सारी जानकारी देनी चाहिए. थैंक यू. सारी फिजिक्स कहती है फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर. Forces coexist in pair. That is action, reaction. They are equal, sometimes greater than that also. But we must learn to appreciate. If you appreciate your colleague, then you will be also appreciated. So someone is coming here, saying something, and we get a chance to interact with each other. Else, otherwise, we are sitting in a common room and having a chugli time. नहीं जी, देखो वो भी जरूरी है. जो मजा चुगली में वो सत्संग में नहीं है. ये फैक्ट है.
ये फैक्ट है। तो डियर टीचर्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज का जो वर्कशॉप है वो हटके होना चाहिए, और ये आपका वर्कशॉप है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तेरा, राइट? मैम ने एक चीज बोली, बॉन्डिंग एंड कनेक्शन। मैम, योर नेम इज Ritu. Ritu ma'am is really perfectly, saying what I used to say, कि bonding is very very important. Yes, sir. कभी ऐसा हुआ है रितु मैम कि बॉन्डिंग हमने बनाई फिर भी ना बनी? Sometimes. वो समटाइम्स वाला जो है ना, वो डिस्कस करते हैं। Sometimes some students का interest नहीं होता. आप इधर ही रहिए। Yes, sir. हाँ जी मैम। Sometimes the students not take the interest in the arts, मतलब कि they can take the interest in the sports and other subjects like music, like shooting. So that time मतलब कि जो मैंने कभी भी उनको ये चीज नहीं कही, अगर मैंने बोला कि ठीक है that is a part of your subject, right? So you can do yourself, जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। अब मैंने जैसे लास्ट टाइम एक पीटी हुए थे हमारे, तो सम स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया कार्टून। सो एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया था कार्टून का, बट सम स्टूडेंट्स ने उसने डिफरेंट जाके उससे भी बनाया, बट सेम टॉपिक था कार्टून। सो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मतलब ये नहीं किया कि भी उसने मेरा सेम टॉपिक नहीं उठाया। सो अप्रिशिएट किया, मतलब एटलीस्ट टॉपिक तो सेम है बट उसने सीन कुछ और बनाया, जैसे डोरेमन बना दिया। सो कभी भी मैंने मतलब कि डिस्करेज नहीं किया स्टूडेंट्स को अपने, मतलब जब भी अपने लाइन में होता है। मैम इज सच एन इंस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी इनका स्टूडेंट हूं, तो मैम ने मेरे को पढ़ाया। शी नोज दैट ही इज नॉट गुड इन ड्राइंग। तो मेरे को एग्जीबिशन में मैम ने बोला कि तू कुछ रखेगा वहां पर। तो मैं कहा मैम एक कंडीशन है, जो मेरी पेंटिंग होगी उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा होगा या ब्लैक कागज लगा होगा, जो चीफ गेस्ट आएगा वही खोलेगा, उससे पहले मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। तो मैम मेरे फेवरेट है रितु मैम, ठीक है। तो रितु मैम बोलते चल ठीक है। और आई एम द वर्स्ट इन पेंटिंग। मतलब मेरी पेंटिंग कैसी है कि जिमें कॉकरोच नु शाही च डुबो के कागज ते रख दो, मॉडर्न आर्ट टाइप। एंड आई वन द बेस्ट प्राइज। हाउ? मैंने क्या किया, कैनवस खाली रखा, उसके ऊपर काला कपड़ा था, जैसे चीफ गेस्ट ने खोला, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, हवा की पेंटिंग, पेंटिंग ऑफ एयर। अब एयर इज विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। तो मैंने कहा सर इस कागज पे हवा पेंट कर दी मैंने। वो कहता है यार टेक्निकली यू आर टेलिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। है तो कोरा कागज। कहता है यू हैव जस्ट रिटन हवा की पेंटिंग, हवा का चित्र। मैं कहा नहीं बना के दिखा दो हवा। कहते हैं बात तो सही है। सी आई टेल यू, आई मेट इस प्रिंसिपल डॉक्टर भूषण कुमार PhD पॉलिटिकल साइंस, पाई रूपा near Freethcourt 3 days before, and he addressed like the ma'am has. She told that I kept on refusing a student admission in 10+1 science. I said you are not good in your कहता जी he insisted कि मैं लेनी ही साइंस है। It's on the record, you can watch him. कहता जी मैं 4 बार मना किया, 5वीं बार वो जी कहता मैं सर सिफारिश भी किसी दी नहीं लगानी, बट मैं एडमिशन लेनी है, पढ़ना भी इत्थे है। कहता somehow I got him admission and with the written. Can you believe what the principal told me? He gets selected in prestigious Institute of Engineering College of India. Okay, the student who is an average student, बट प्रिंसिपल सर स्टडीड के इसਨੂੰ ਚੱਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾयਦ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਲ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਬਲ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ, ਰੋਸ਼ ਜਾ ਗਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि समटाइम्स कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता, टीचर एवरेज होता है। वो बच्चा जिसनु टीचर कहे ना कि तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी च, तू बेकार है, मैं उसनु टीचर ही नहीं मानता। मैं उसनु टीचर ही नहीं मानता। हर बच्चे दे विच कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। सो मैम आपकी ये बात
को मैं राइट नाउ एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। +1 में मैं जैसे फाइन आर्ट्स लेती हूँ, तो फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में कहा कि भी मैम हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है एक्रेलिक कलर्स करना। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप कर ही जाओ। चिराग है एक बच्चा +2 में, सर आज आप उनकी ड्राइंग देखोगे ना, मतलब कि आप देख के कहोगे कि वाह, मतलब कि अभी हालांकि उन्हें 6-7 मंथ्स ही हुए हैं वो करते हुए, और उनकी ड्राइंग इतनी, कहाँ वो कलर भी यूज करते हुए डरते थे, नहीं मैम आप करो। मैंने 2-3 शीट्स उनकी खुद बनाई। मैंने फिर एक दिन बोला, मैंने कहा मैंने नहीं बनानी, अब जैसा मर्जी करो। और सर आज उनकी ड्राइंग देखो, बेस्ट टू बेस्ट है उनकी the ड्राइंग। credit goes to Ritu ma'am, teacher. So what you do is that, if someone, we people, somebody says teacher is just like a Kumar. मैं कहा अच्छा फिर वो तो मिट्टी को ऐसे शेप देता। मैं कहा यार ये ना सब सुनी हुई बातें हैं। अब मेरे को, आई यूज्ड टू बी स्टूडेंट इन चंडीगढ़, तो वहां एक योगा के सर आते थे, और मुझे योगा, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट योगा, बट मुझे नहीं अच्छा लगता जी। मैं तो जिम वाला बंदा हूं, जब तक शरीर ना तोड़ूं लोहे के साथ तब तक मजा नहीं आता। जबरदस्ती योगा क्लास लगती थी, तो पेरेंट्स ने भेज देना, तो आई वॉज टॉपर इन शवासन, सुते रह जाता जी। शास्त्री कहना वाह कितना अच्छा है, मैं कहा मैंने तो पता ही नहीं, मैं तो सो गया। सो लॉजिक क्या है, समटाइम्स टीचर्स के पास एक रेसिपी होती है जो किसी टीचर के पास नहीं होती। वो अपने हिसाब से, गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। टीचर को एक ही बंदा समझा सकता है, खुद टीचर। गलत बोला है? नहीं सॉरी। तो मैम आपने बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया, एंड होप कुछ और है आपके मन में तो आप शेयर कीजिए। सो बस यही है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू, मतलब कि मैं यहाँ टीच कर रही हूँ। बिफोर दैट जब मैं यहाँ, थोड़ा बीच में मेरा 1 ईयर का गैप था, सो तब भी बच्चे जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे ना, उनके पेरेंट्स मुझे सेंड करते रहते थे कि मैम देखो जहाँ बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, और आज वो, मतलब कि आफ्टर दैट भी दे वर सेंडिंग टू मी देयर वर्क ऑल्सो। और आज बहुत से बच्चे जिनको मैंने टीच किया, वो बाहर आउट ऑफ स्टेट, मतलब कि एंड आउट ऑफ कंट्री वो सेटल डाउन है, और कॉल करते रहते हैं आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स बाद कि मैम आज, मतलब कि नो डाउट की भी किसी टाइम पे मैंने इंग्लिश भी टीच की है। सो आज मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ, तो दैट्स वाई। मैम तुम बहुत सोना बोल रहे हो। जो प्रॉब्लम ना आए बढ़िया बोल रहे हो, जो प्रॉब्लम ना आवे वो तो गदर हो। सो यस प्लीज कंटिन्यू। सो दैट्स वाई फिर वो आज आउट ऑफ कंट्री हैं, और वो कॉल करते हैं कि मैम आपकी ग्रामर पढ़ाई हुई ना, मतलब कि हमें कोई नहीं पढ़ा सकता, और कहते हैं हमें नीड भी नहीं है। एक बच्चे का यूके से फोन आया, शी सेड कि भी मैम मैंने आपसे ना इंग्लिश के वो ग्रामर, मतलब कि कोचिंग लेनी है। मैंने कहा बेटा देखो मेरे पास टाइम नहीं होता है, सो अगर आप इफ यू आर प्रैक्टिस तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। मैंने कहा किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बहुत पैसे लेते हैं ग्रामर के लिए, सबके लिए, बट फर्स्टली यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अपने एफर्ट्स दिखाओगे। सर आज वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है और बहुत अच्छी फर्म में सेटल डाउन है। कहाँ वो वापस आने की, इंडिया आने की सोच रही थी कि मैं वापस चल जाऊँ, और उन्होंने बहुत सफर किया अपनी लाइफ में, इवन अपना घर तक भेज दिया, बट अब नाउ शी इज सेटल्ड। देखो मैम से इंस्पायर होके मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैं पंजाबी मीडियम में पढ़ा हूं जी 10th तक। मैंने ले लिया नॉन मेडिकल। अब क्लास में हमारे पास थे सब सनावरियंस, यादविंद्रियंस, पीपीएस एंड सो ऑन। गलती से नंबर आ गए 720 आउट ऑफ 800, तो क्लास भी अच्छी मिल गई, रोल नंबर भी अच्छा मिल गया। तो मोदी कॉलेज, प्रोफेसर सुरेंद्रलाल takes physics classes. He said, "You stand up." Yes, sir. Tell me what is yount? मैं कहा जी yount, it is the standard measurement of a physical quantity. सारी क्लास हंस के तालियां बजावे। Wow, what English, and I don't know. I say you to you, and I say like that. फिर केमिस्ट्री वाला आ गया, कहता डिफाइन बोहर्स पोस्टुलेट। मैं कहा बोहर स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज nh/2 pi wherever the electron is revolving in a particular orbit neither gain energy nor loses energy। सारी क्लास तालियां मार दी। मैं सोचा मैं बड़ा वधिया बोल रहे हैं, वो हंस रहे सी कि ये बंदा केड़ा सीगा, मैकमी, मैं आई कम इन दी जगह मैकमी। साढ़े ना
एक्चुअली एक इंग्लिश डिबेट एंड डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होंदा सी, तो दे पीपल हैव नोइंगली रिटन माय नेम that he will be also participating because when he will speak we will enjoy. पता मैंने भी लग गया, हुण मैं भी पंजाबी हां, आई फॉलो गुरु गोबिंद सिंह जी। मैं कहा ऐसी की तैसी, साडे उस टाइम ऑटम ब्रेक हुंदी सी, तो मैं कहा यार अंग्रेजी सीखनी है। मैं बस स्टैंड रेलवे स्टेशन ते पटियाले गया, उत्थे कपिल देव दी एड आंदी सी, 40 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे रैपिडेक्स। मैं जी पैसे भी नहीं सी मेरे को, मैं ट्रिब्यून की रद्दी बेची, कुछ सोवियत भूमि के मैगजीन बेचे जी। मैं क्या किन्ने दी किताब है, और मैं ले आया। हुण जे ग्रंथां च भगवान हुंदा, असीं घट्टो घट फरिश्ते हुंदे। लोग इन्ना प्रवचन सुनते हैं लेकिन फॉलो तो कोई करता नहीं, मैनूं कुछ समझ ही ना आया। देन आई हैव एट दैट टाइम VCR was very famous, we used to watch English movies sometimes। तो मैंने किसी ने कहा भी तू इंग्लिश मूवी देख, तेरी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। और मेरे को मुश्किल थे 30 दिन से गए मैम, रियलिटी है, इट्स आई एम टेलिंग द फैक्ट। आई ट्राइड, आई कुड नॉट फॉलो। ओ बस को समझ आंदी सी गल, माय नेम इज बॉन्ड जेम्स बॉन्ड 007 लाइक दिस, खत्म। देन मैनू बड़ी मुश्किल आई, तो माय मदर वाज आल्सो टीचर। मैं कहा अपने मदर नूं कहा, शी वाज अ मदर टीचर, यू स्किप्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, हैड देयर बीन मदर टीचर it was very important part of my workshop anyway। so मैं उन्होंने कहा जी मैनू ये प्रॉब्लम है, कहंदी तैनू एक्टर केड़ा वधिया लगदा है। मैं कहा मैनू अमिताभ बच्चन बड़ा पसंद है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे। कहती बस तू उत्थों बहुत ज्यादा सीखदा। फिर एक पिक्चर आई नमक हलाल, उस चों पुछदे भी तैनू कुछ अंग्रेजी बोलनी आंदी, कहंदा बाबू जी जय हिंद, आई कैन स्पीक दैट इंग्लिश, दैट आई कैन लिव बिहाइंड अंग्रेज, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, इट इज अ फनी लैंग्वेज। मैं कहा यार आई शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मीडिया। तो मैंने 6 इंटरनेशनल टीचर मेरे घरे पढ़ाना आंदे सी, तेजेश्वर सिंह, निधि रविंद्रन, सुनीत टंडन, कोमल जीबी सिंह, दे वर ऑल दूरदर्शन न्यूज रीडर्स। तो मैं रजिस्टर लता, मैं बह के जी लिखना शुरू करता। उस तो बाद जब मेरी टर्न आई, व्हाट आई डिड मैम, आई यूज्ड टू इमिटेट द न्यूज रीडर्स बिफोर मिरर। एंड देन जब मेरी टर्न आई, द टॉपिक सेगा माई लॉर्ड द बेबी, प्रोज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आई स्टिल रिमेंबर, आई एम गिविंग यू डेमो। जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, 8 नंबर रूम, हले भी याद है, मोदी कॉलेज। बहुत हुटिंग हुई भी, मजा आएगा भाई। स्टार्ट हो गया, माय लॉर्ड द बेबी इज a highly moving narrative of a servant's devotion, suffering and sacrifices. It reveals Tagore's deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Written by servant in Nicole's house, he had been there since the time when he was a child। मैंने हाल तक याद आओ वो है देखन, and I got second prize। वो तेरा नाम तो असी देसी अंग्रेज पाया सीगा। मैं कहा हाँ, मैं कहा असी हैगे चेले बाबियां दे। वो कहंदे जे तुहानू कोई टॉन्ट मारदा ओदी सुन लो, उदा रिप्लाई वड्डा करके दो। सो डियर टीचर, लैंग्वेज, आई रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, बट द क्वेश्चन इज दैट परफेक्शन, नोबडी इज परफेक्ट। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, है ना, नोबडी इज परफेक्ट। बट द क्वेश्चन इज दैट टीचर जेड़ा है ना, मोदी तो ये कह दिंदा मेरा 56 इंच का सीना, साडा हुंदा 56 इंच का बच्चा टॉप करके नहीं जांदा, वो मेरा स्टूडेंट, असीं उही चौड़े होए हुंदे हैं, राइट। सो बेसिकली टीचर वो है who is really connected। you are a teacher जिन्हें एक साल का गैप तो बाद भी कहने के पढ़ना है, ता रितु मैम को पढ़ना है, अंग्रेजी सीखनी है तो रितु मैम को सीखनी है। सो दिस इज a practical example of a teacher। So thank you ma'am, Thank you sir, God bless you, thank you। and I tell you that nobody is perfect, so we can make, even we are not, मैं तो बच्चे को बड़ा सीखता है। I learn from students only, not from other than students, because मैं frankly ससा मैंने किस दा पढ़ाया समझ नहीं आया आज तक, except Professor Surinder Lal, he is one of the best teachers, and Mr. Harpal Singh Naring साडे मैथ्स दा टीचर हुंदे सी, SD school in Mr. Mangla मैथ्स दा टीचर हुंदे सी, and they are the 3 teachers which I follow, and my mother of course। बाकी तो फिर मैं बड़ा मतलब ठीक सीगा, ਅਸੀਂ बैठ के गर्दना मार दिंदे सी, यस मैम, यस सर, आया कख नहीं हुंदा सी समझ। सो किस तरह मैं अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, that I will narrate as a teacher, as a student।
So thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so God much. bless you. Yes, sir. Good morning, all. My name is Navneet Singh. I'm a computer science teacher in Milestone Smart School, Gnor. My subject is computers. I'm teaching IP over here and teaching computers to junior classes also. So my main thinking about teacher is that the person who can learn from students or from anywhere. If you are not able to learn, you are not a teacher. So if I says ki if whatever I have learned from my courses and everything, everything is outdated right now because computer has changed so tremendously that ki we cannot teach to the students ki what we have learned. So we have to continuously update ourselves. And what the thing student knows that we can get from them only. If sometime if I say is ki right now one word is very popular, I think you all knows about cryptos and mutual funds. So it is not a cup of tea of everyone, if you say. But student knows much more than you. One student is in 10th, you all know, and I think you all will say he is a very naughty person, or I think he is not able to study. I think fine. That is the name is that Sikh boy. I forgot the name. Not Harkirat. Jasmanjot Singh. What he has written is an answer sheet. It was basically a joke. But after that, I thought ki his knowledge it's much more vast. The question I asked him about what is the role of an entrepreneur and I think in 10th class there is a chapter entrepreneurship. So he written about a gangster, Pablo Escobar. Wow. He written about him, how he do his business, how he do his earn money and everything. So basically, it's a business also. He's doing some gangster war and everything. It is a so whatever he has got, he knows better than me. What is your deep sea? If you will ask anyone कि what is deep sea, तो no one knows कि what is deep sea. हम तो ये कहेंगे समुद्र की गहराइयों में. तो what is कि वो हम तो सब वही हैं जी क्रोम यूज कर लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर लिया. So whatever the thing beyond this comes under the part of a deep sea. If you will see search on internet, whatever we are using nowadays, we are using only a 10% of internet. 90% of internet is behind the scene. That is under the sea, जिसको हम बोलते हैं deep sea. So he knows that knowledge also. And right now he is doing work in cryptocurrency also. Is giving managing portfolios of other persons online. So if I say कि what I have learned, I am nowhere. Some students are learning and we are कि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे उसके साथ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है. तो स्टार्टिंग में जब उसने आंसर लिखा तो इट वाज अ वेरी सम यू कैन से कि डिसअपॉइंटमेंट कि ये क्या लिख के आ गया, क्यों लिखा. बट आफ्टर थिंकिंग कि थोड़ा सा कि नो दिस क्वेश्चन इज राइट, बट हम कई बार उस पॉइंट में चले जाते हैं कि जो आंसर बुक में है वो ठीक है, बाकी सब गलत है. Yes, yes. Wonderful, wonderful. तो as far as I am thinking कि practical is not 2 + 2 = 4. एक अमिताभ बच्चन की सर ने कहा कि पिक्चर आई थी कि 2 और 2 5 कैसे होता है. वो जब होगा, जब करना सिखाएंगे तब पता चलेगा. करो कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू. थैंक यू सर. कंटिन्यू. नहीं, सर ने 2 + 2 5 की बात की ना, वो अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी सर. तो चले, जरूर चलेंगे सर. सर ने मेरे को पढ़ाया, कहता a² - b² = a + b होल स्क्वायर. a - b. सर बोलते if a is equal to b, then a² - a² = a + a - a. Then a is taken common, a - a = 2a × a - a. This gets cancelled.
1 is equal to 2, adding 3 on both sides. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें, है ना? Yes sir. तूने अभी देखा नहीं? कंप्यूटर साइंस तो जो whatever you can think हाँ। we can create with the help of the ਇੱਕ ਨਾ computer. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਈਗੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਈਗੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। I got a chance to interact with ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਡ। ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਲਕਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਟੂਟੀ, ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਗੋ ਹੈ। थोड़ी देर बाद पानी आंदा है, मैं को ज्ञान है। जी हवा है तो हवा है तो पानी नहीं है, पानी है तो मींस ईगो है, तो फिर नॉलेज नहीं है जी। ताई तो गुरु महाराज ने बोला नीवे नीवे चलो तो ज्यादा वधिया है ना। सिख कौन है? जरा सिखता है हर वक्त, एंड ही इज द ट्रू लर्नर, दैट इज कॉल्ड अ सिख। सो सर दी गल कितनी वधिया, 2 + 2 = 5। एक सर ने होर किया कि उस बच्चे ने कुछ होर लिखा। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਟੀਚਰ ਆਫ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਬੰਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ 250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕਿਆ ਪਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ। ਉਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ, ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੜੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 450 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ। शिवाजी महान थे क्योंकि वो महान थे, इसलिए महान थे क्योंकि वो महान थे। ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਾਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੇਪਰ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਦੂੰਗਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਸਰ, ਆਈ ਨੋ। ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਨੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੀਚਰ ਹੀਅਰ? ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੋਲੀਗ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਈ ਅ ਹਾਰਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਨ ਅ ਕਾਰਟ ਇਨ ਐਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ, 2003-2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੰਧੂ ਮੈਮ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਅਰ, ਅਨਦਰ ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ ਵਾਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਕਸੀਜਨ। Since there is no oxygen, horse will not be able to inhale, so he will die. He will not be able to pull the cart. Answer is that in vacuum there is no friction, so there is no forward component r cos theta. Ultimately, the horse will not get a forward push because of friction is not there. Because when you walk, you pull the ground, push the ground in the backward direction, the ground gives you reaction in the forward direction. You know, that is friction. Okay, so that is missing in vacuum. मैं क्या मैम ये आंसर नहीं सर, ही इज राइट। और मैं क्या मैम तुसी हुन हिंदी पढ़ाते हो, तुसी कहंदे हो क्या? मैं नहीं कहना हिंदी अच्छी चीज नहीं है। मैं क्या तुसी ये जानते हो क्या, सोते मुझको आन जगह में, अड़त पिड़हत बिरह के अक्षर, क्यों सखी साजन ना सखी मच्छर। मैं कहा तुसी ये जानते हो, तुसी फ्रिक्शन नहीं जानते हो, तुसी किसी फ्रिक्शन वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂ? ਹੀ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪਾਇਆ, देयर इज अ हॉर्स इन वैक्यूम विद ऑक्सीजन सिलेंडर। सो समटाइम्स ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਵਿਪਨ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਪਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 19 ਭਜਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ 20 ਨਾਲ ਲੱਗੇ 4 ਨੇ 80। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ this is a reality. This is a harsh reality which we are facing sometimes. You know, sometimes when the head of institution is calling us and saying something, and we are listening, and after that we must understand it's a reality, but actually it is a pseudo reality. So really amazing. You made me to, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਛੱਲੀ ਭੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਰੀਆ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ 2+2 5 ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। This is called organic workshop. Thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you very much. So, dear teachers, in national education policy, this is what we need. We have to create the impromptu subject linkage, right? Impromptu. Linkage. That is very important. Do you see any paper in my hand? So it is impromptu. We are creating the content, right? Now, I request Honorable Ma'am to join us. Ma'am, please. You can hold it in the hand even. It's okay. Good afternoon, everybody. And today is my first day in the school. First day? Yes, sir. I'm Dr. Shipra. I'm MSc in Biochemistry and PhD in Biotechnology. I have joined here as a PGT Chemistry. And right now, I'm an educationalist. I can say that I was teaching in a Patel Public School, which is affiliated to CBSE board. Rajpura? Rajpura. Under Dr. Chaya Nurullah? Yes. I have done 3-4 workshops there. Okay. So previously I was teaching there for 9 years, and then I joined Rayat Bahara Dental College as an assistant professor biochemistry. I took their BDS classes, and recently today this is my first day in the school. So I have joined here as PGT Chemistry. See, कहते हैं सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे खाम, नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम। मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप। तो शी इज अ केमिस्ट्री स्कॉलर. Immediately I said CNS2 and plus 2 alkane, CNS2 and plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde. Oh my God. Hexer, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. The ma'am says that all gas molecules are spherical. They are very hard to compress. Then they move in the random directions. Their collision is instantaneous. The distance between the molecule is called free path. Their collision is elastic. Their volume is negligible as compared to the total volume of the gas. Their impact on the wall causes pressure. Ma'am, postulates of kinetic theory of gases. All I want to say that I am an educationalist rather than saying that I am a doctorate. It is, when you are doing research in any subject, then it takes a lot of time and in a lot of years. But from last 12 years, I am taking up the classes from 9 to 12th. So in that case, I can say that just students 15 to 18 age के होते हैं. Yes, in ma'am. इस एज के स्टूडेंट्स जो हैं, they always make you young. जैसे मैं. Yeah. Thank you. Yeah. And next thing is they are always with the full of queries, और उनकी queries solve करने में जो मजा आता है वो बहुत interesting. मैम, मजा ही उसमें आता है. Yes. हायर क्लासेस में तो वो आए नहीं होते. 90% तो उनकी लाइन चल रही होती है. और पता भी नहीं लगने देते, उनके पास मोबाइल भी होते हैं. पिज्जा ऑर्डर करूं स्विगी से, रिसेस में खाएंगे दोनों बैठ के, पिछले वाले यप. तो मैम पढ़ा रहे हैं और दे आर प्रिटेंडिंग यस, उनको कुछ नहीं पता लग रहा है. शी इज एब्सोल्युटली राइट. मैम, सी इट्स रियली
amazing and enthralling to have a doctorate in the faculty, and moreover with such a vast experience you have. Ma'am, anything in your mind, even related to chemistry also, though chemistry, basically I'm a learner ji. I'm not perfect, let me tell you. I believe in गुरबानी, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, nobody is perfect, so I am not. But मैम आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो पीएचडी वगैरह के बाद आपको, जहां तक मुझे लगता है, वो झील जो होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो आपको स्कूल में लेके आई है, क्योंकि बड़े लोग तो डफर होते हैं जी, मतलब डफर इन द सेंस दैट वो लोगों में उनकी जिंदगी का कोई चार्म ही नहीं रहता। गन्ना देखा आपने? Yes. गन्ने में नींबू होता है ना, वो पहला उसको काट के डालते हैं, फिर दूसरा, फिर थर्ड फोल्ड में वो लमीना बन जाता है। लमीना इज जस्ट हैविंग अ लेंथ एंड ब्रेड्थ, नो थिकनेस, तो उसको भी भैया सरके में डाल के रोटी के साथ खा लेता है। तो जिंदगी लोगों की कहीं उस लमीने की तरह बन गई है कि उसमें कोई रस ही नहीं रह गया है ना। सो छोटे बच्चे तो होते हैं आलू बुखारे की तरह, जो बड़े हो जाते हैं वो बन जाते हैं छुआरे, है ना, रिंकल्स पड़े होते हैं। तो आपको शायद स्कूल में बच्चों की क्यूरियोसिटी लेके आई है। यस, एक्चुअली सर मैंने ये देखा है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लेक्चर अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। उनको कोई इस चीज से मतलब नहीं है कि भी हमने मतलब पढ़ना है। एक्चुअली स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहते आजकल, वो जस्ट रील्स देखते हैं इंस्टा पे, स्नैपचैट पे अपने स्ट्रीक्स कंटिन्यू करते हैं, और उनको अपने मतलब फोकस ही नहीं होता किसी भी चीज पे। मैं तो प्रोफेशनल कॉलेज में ही पढ़ा के आई हूँ अभी रिसेंटली, तो उसमें भी उन लोगों का यही है कि भाई हमने जस्ट मार्क्स लेने और अपना जो है कोर्स को गो थ्रू करना है। लेकिन जो 9th to 12th वाले बच्चे हैं, उनका जो है ना, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू कैन से। उसमें आप क्या कह सकते हैं कि भी अगर उनको फ्यूचर जो है, उनका माइंडसेट जो है, अगर हम उस पॉइंट पे स्टार्ट करवा दें कि भी आप जो है इस डायरेक्शन में जाओगे, आपका जो ये करियर पाथ होना चाहिए, और वो उस पाथ को फॉलो करते हैं, तो उनको अपने डायरेक्शंस क्लियर होते हैं। और मुझे ये लगता है कि वी शुड shape the brains of 9th to +2 students. We should shape them. जैसे 1968 में 21 इयर्स के बाद एक पॉलिसी बनी कि बच्चों को ऐसे पढ़ाए, फिर 68 का उल्टा कर दिया 86, फिर पॉलिसी रिवर्स होगी, फिर उसके बाद 2002 में 2020 में बन गई एनईपी, फिर उसको आगे फर्निश किया, वो अभी तक लागू नहीं हो पाई। बट सर इट इज नॉट अबाउट लाइक कि मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगी। अब हमारे 9th-10th के स्टूडेंट्स जो हैं MUN अटेंड करते हैं, सर सोशल स्टडी से रिलेटेड है ये। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज बनते हैं। उसमें हर स्टूडेंट जो है ना अपना एक्चुअल पोटेंशियल दिखाता है वहां पे। और आजकल का दौर ये है कि भी सब बच्चा जो है ना अपने अकॉर्डिंगली, जो भी उसका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली जाए। ये नहीं है कि भी हाँ सबको साइंस ही लेनी है, सबको कॉमर्स ही लेनी है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब वो जैसा पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो उस लाइन में जाता है, तो उसके एक्सेल होने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। हाँ ना, बिल्कुल ये चीज है सर। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया कि कई पेरेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को कि भी आप नॉन मेडिकल लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म करियर, और आप जो है उसके बाद आप मैसूर में आपकी जो वो लग जाएगी, इंटर्नशिप लग जाएगी, उसके बाद अच्छा पे स्केल मिलना शुरू हो जाएगा। बट सम स्टूडेंट्स जो है दे वांट टू गो टू यूनाइटेड नेशंस। तो उसमें यूनाइटेड नेशन में जो बच्चा जाना चाह रहा है, उसको ये पता है कि भी आईवी लीग कॉलेजेस हैं, आजकल के बच्चे अवेयर हैं, दे टेक सेशंस फ्रॉम द एजुकेशनल काउंसलर, और वो जाके वहां पे पता करते हैं, पूछते हैं उनसे कि भी हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। तो नोटिस में ये चीज आ रही है कि जो बच्चे मैथ्स +2 तक रखते हैं, उनको हर डायरेक्शन में दे कैन मूव ऑन, चाहे वो आर्ट्स कर ले, चाहे वो मैथ्स MSc मैथमेटिक्स कर ले, चाहे वो किसी भी आगे फॉरेन कंट्री के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। अगर उनके पास मैथ्स है ना, तो वो दे विल नेवर लैग बिहाइंड। कोई जरूरी नहीं है कि भी फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी जरूरी है, उस टाइम में मैथ्स विद आर्ट्स भी चलता है। अब भी चलता है। अब आप मैथ्स के साथ इंग्लिश म्यूजिक ले लो, एनईपी बोलती है, मैथ्स के साथ ड्रोन पायलटिंग ले लो। लेटेस्ट एनईपी तो ये भी बोल रही है कि साइकोलॉजी लेना शुरू किया, क्योंकि लेटेस्ट तो सर पीएचडी इन साइकोलॉजी की वैकेंसीज मैक्सिमम है। अगर हम लोग उसमें जाएं कि भी प्रैक्टिकली क्या चीजें सबसे ज्यादा अच्छी चल रही हैं, इस वक्त पीएचडी इन साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा माना जा रहा है। उसका रीजन है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी ही स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीचिंग करते हैं। परफेक्ट, यस मैम, यू आर राइट। दैट इज अ थिंग। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियर को भी सीखना चाहिए, डॉक्टर को भी सीखना चाहिए, एंड टीचर्स को तो सीखना ही चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी, और रिसोर्स पर्सन को भी सीखना चाहिए।
यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। मोरोवर सर मेरा मोटिव ये है कि मैं क्लास में जब मैं जाऊं तो वो वॉल्स को ना पढ़ाऊं, बच्चों के ब्रेन में जाए चीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं बोल रही हूँ और कोई सुन नहीं रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक वेग, कोई फायदा नहीं है उसका। टीचर आया पढ़ा के चला गया, बच्चे सुन नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है। अगर जब बच्चों के साथ हम उनके ब्रेन को मैच करेंगे, उनके साथ उनकी वाइब मैच होगी, हमारी ट्यूनिंग मैच होगी, तभी वो बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। टीचर पता है कौन है, कैन आई यस ऐड? टीचर एक कंगारू है, उसकी बैली में एक और कंगारू है। यस जब हम क्लास में घुसते हैं ना जी, तो टीचर हम है, जो हमारी बैली में है वो हम एक स्टूडेंट है। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। अगर वो अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट से मैच कर गया तो शी इज अ डॉक्टर साहब, शी इज रितु मैम, दे आर लाइक आवर ऑनरेबल कंप्यूटर सर। अगर वो बच्चा हमारे अंदर का स्टूडेंट उस स्टूडेंट से मैच ही नहीं किया तो फिर वो कहेगा तेनों टीचर किने बनाया, भूत नहीं दिया। इफेक्ट है, क्योंकि जब टीचर क्लास में जाके पढ़ाता है तो उसको पता होता है उसने कैसा पढ़ाया। सर एक्चुअली पहले वाले टाइम में ना गुरु की बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस होती थी। आज के स्टूडेंट्स जो है ना, गुरु को गुरु तभी मानते हैं जब उनको ये सामने से समझ आ रहा होता है कि ये हमारी बात सुनेगा। वी शुड नॉट बी डेफ टू द स्टूडेंट्स, वी शुड गिव देम अ हियरिंग, मतलब लर्निंग प्रोसेस हमारा तो उनको जाएगा ही जाएगा, बट जब तक हम उनकी नहीं सुनेंगे ना तब तक हमारा उनके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। वाह, वेरी 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 ट्रू मैम, वेरी ट्रू। जब मैं पढ़ता था तब भी ये बोलते थे क्या गाना गाते हो रंबा हो सर जैसे आपने अपने संबा बारे में हो, बताया कहते हैं कितने गाना वो सुनो, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। हम ये गाना सुनो आत्महत्या करने को मन करता है। और आज की डेट में जट लेके आया थार, निकलो करो बाहर, साडे कोल हथियार कर देंगे आर पार। कहते जे तुम कहोगे सानू ये गाना पसंद नहीं, अगला कहेगा आउटडेटेड है। हुण मेरे नाल एक बंदा बह गया, मैंने कहा सर जी मैं थोड़े कार दे विच एक गाना सुनना, मैं कहा सुन ला। उन्हें ब्लूटूथ कनैक्ट किया, वो पता नहीं की लगाया ते मैनू कहंदा किवें, मैं कहा यो ब्रो व्हाट अ सॉन्ग, मैनू कुछ समझ नहीं आया कि हुण जे मैं उन्हें कहंदा भी मैनू नहीं समझ आया, वो कहंदा भी बंदा रिबूट करो, ये तो सॉफ्टवेयर ने अपडेटेड। जेड़ा टीचर है डॉक्टर साहब वो है हार्डवेयर, जेडे बच्चे और लेटेस्ट चीज है वो है सॉफ्टवेयर। Yes. तो जे असं अपडेट नहीं करेंगे तो असं नोकिया बन के आउटडेटेड हो जाएंगे। तो सानू आईफोन 76.16.02 अपलोड करना ही पड़ेगा, है ना मैम? मजा आ रहा है? तुम पता 1 घंटा हो गया अपन, यू नो 1 hour इज गॉन और 1 घंटा रह गया, जो चिंता ना करो। नहीं सर एक और बात मैं कहना चाहूंगी मैम, दिस इज योर सेशन, खुल के बोलो। सर जैसे आपने बताया कि भी आप पंजाबी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हो, हाँ। और आपको कैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम आई, ऐसे सेम चीज मेरे साथ भी हुई। हाँ। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मेरी 10th क्लास जो है दुर्गा बाल विद्या मंदिर राजपुरा में एक स्कूल है, बिस्कुट फैक्ट्री स्कूल कहते हैं उसको। तो सर राजपुरा से बिलोंग हाँ करते जी, पेन, हाँ जी, मेरे को भोलपुर भी आउंदी है। ओके सर। यस, तो सर वहां से सर मैंने अपनी 10th क्लास की और विद द 88% मार्क्स। बट उसके बाद मेरे को सर मैंने +1 में डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में सेक्टर 15 में एडमिशन लिया, +1 में मेडिकल में। तो हमारे जो केमिस्ट्री और बायो के टीचर आते थे वो आते थे क्लास में पढ़ा के चले जाते थे और मुझे कुछ नहीं पता चलता था वो क्या पढ़ा के चले गए। तो आई वॉज जस्ट की भी मैं बैठी देखती रह जाती थी। और मेरा पहला 1 साल तो ना डिक्शनरी खोल के पढ़ने में लग गया कि भाई हिंदी टू इंग्लिश इस चीज को क्या कहते हैं। हाँ। फिर +2 में मैंने ग्रिप किया, ग्रैस्प किया सब्जेक्ट को, और उसके बाद मैंने मतलब देखो 85% मार्क्स हिंदी में वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, एक्सेलरेशन को प्रवेग बोलते हैं, मास को पुंज बोलते हैं। मतलब वो जो एक टाइम पीरियड था ना, दैट वाज अ मेंटल ट्रॉमा फॉर मी कि भी मेरे टीचर्स जो है आके मुझे कुछ भी बोल के जा रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट। वो पेन जो है ना सर, वो मेरे को टीचर बनाने में बेनिफिट कर गया कि मेरे स्टूडेंट्स को अब मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो उनको पहले समझ में आता है तो ही बोलती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलती। वाह, ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर साहब आप जैसे लर्नड लोग, वो ये ना मेरी भैन है, पूछो किदा, मैं भी तहसील राजपुरा पिंड दादू मजरा दा रहने वाला है, भी राजपुरा दे नलास तो अगे ही मेरा पिंड है, ठीक है। उस तो बाद राजपुरा एक गेटवे ऑफ पंजाब हो गया, राइट। और राजपुरा इज गोइंग टू बी एन IT पार्क आल्सो। यस, राजपुरा दे विच कई बड़े अच्छे स्कूल भी हैं। मैं जखवाली
बढ़ा ली ये गंडा केड़ी से है सर। अच्छा गंडा खेड़ी ओके फाइन सो आगे मिल लिया। गंडा खेड़ी तो बहुत मशहूर है सर बहुत सारे लोग ਇਹਦੇ ਚ ਜੰਪ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ सो गॉड ब्लेस यू एंड रियली थैंक यू मैम आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया Good morning, everyone. My name is Tarundeep Singh Khera, and I am teaching music here. I'm a PGT music, and I have done my masters from Punjabi University, Patiala. Then I have cleared UGC NET also, and I have also written a paper, and I've got a certificate from Punjab government to writing that paper also. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है कंटिन्यू प्लीज So I've joined here in the month of June. जून दैट इज 27 जून तो नहीं मतलब 27 जून तो नहीं अच्छा अच्छा And this is my first experience. फर्स्ट एक्सपीरियंस आई लव यू डियर सर संगीत है ना जड़ा म्यूजिक यू नो इट्स रियली समथिंग यू नो मतलब म्यूजिक कनेक्ट्स विद द ऑलमाइटी True. है ना सपोज करो यू लिसन विद मर्यादा एंड शब्द तो थोनू आनंद आएगा जस्ट क्लोज योर आइज और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होगी कि जो बाणी है वो लिखी आती है तो तुसी यू कैन रीड आल्सो व्हाट द सिंगिंग आई मीन व्हाट उसका जरा रिसाइटेशन है द बेसिस ऑफ द रागस चाहे वो राग दीपक होए चाहे तोड़ी होए चाहे मल्हार होवे है ना भैरवी होवे है ना रिसोर्स पर्सन ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ what do you say about the music means how you connect music with the students ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ मैं तो हिमाचल च जाके पंजाबी बोलता है एक बार एक हिमाचल च मैं लेक्चर देने गया मंडी एक लड़की आ गई सर आपसे क्वेश्चन पूछना मैं क्या सर एक बात बताओ मैं क्या सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा उसने खाया क्यों नहीं मैं कहा बेटा उसने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों लिए हुए थे तो सुपर साइंस खा लिया ग्रेविटी खाया नहीं उसने ग्रेविटी डिजाइन कर दिया F = gm/r²। सर एक बच्चा और उठ के आया वो आर्ट्स के थे लड़की ये बिलासपुर की बात है कहती सर अगर उसने आर्ट्स लिया होता तो मैं कट के खा लूंगा हुण इन्ने च एक कमर्स वाला आ गया कमर्स वाला पूछदा कि सर अगर कमर्स लिया तो मैं धो के चमका के पॉलिश करके बिंद्रा वेजिटेबल नु बेच दिंदा कहंदा ये आडम ईट द एप्पल है 1500 रुपए का सो हर बंदे का एक अपना टेम्परामेंट होता है म्यूजिक इज सच ए थिंग यू नो which binds everybody हाँ जी there is a tea break for 10 minutes he told me this okay so to be continued after the tea break and with musical restart of session there is a tea break for 10 minutes and after tea breaks you will be with me Okay, sir. Thank you. God bless you